Hello kids, welcome back to your class. And kids, yesterday we have started word processing. कल हम word processing पढ़ना शुरू किए and today we will first of all I will explain you these things with the help of okay. So first of all I will explain you this thing with the help of slide. ये Microsoft Word की एक PPT है जिसकी help से I will explain you the thing. Okay, so yesterday we have started studying about Microsoft Word और हमने देखा कि what are the word processor अलग अलग टाइप के होते हैं जिनके अलग अलग functions होते हैं. तो today we will start word processor, I mean Microsoft Word. Now Microsoft Word is the word processing component. What is Microsoft Word? Microsoft Word is a word processing component of the Microsoft Office suite. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक कंपोनेंट होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक कंपोनेंट होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. इट इज यूज्ड प्राइमरली टू एंटर, एडिट, फॉर्मेट, सेव, रिट्राइव एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट. तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का देखो, हमें कौन सा वर्ड प्रोसेसर पढ़ना है. वी हैव टू रीड अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. तो इस सॉफ्टवेयर की खासियत क्या है, व्हाट इज द, क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं. इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन, व्हाट वी कैन डू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वी कैन edit, format. See, what can we do? We can edit, we can format, and we can save and retrieve and print document. We can print our document. So this much of things we can do here in the Microsoft Word, है ना. Okay, now what are the other thing that we can do with this program? What are the other thing that we can do with Microsoft Word? So we can cut, copy and paste our text. We can cut, copy and paste our text from the one place to other. We can cut, copy and paste our text from one place to other. एक जगह से दूसरी जगह हम उसमें जा सकते हैं, टेक्स्ट को ले जा सकते हैं. नेक्स्ट इज वर्क विद द बटन्स ऑन द टूल बार. टूल बार पे जितने बटन्स होते हैं उन पे हम काम कर सकते हैं. वर्क विद द पॉइंटर एंड वर्क विद टेक्स्ट एंड कैरेक्टर इन अ प्रोग्राम. वी कैन ऑल्सो वर्क विद टेक्स्ट एंड कैरेक्टर ऑफ अ प्रोग्राम. Also we can work with pictures. We can work with picture. And we can work with language tool. Language tool कौन सी होती है उसमें, that we will read in our chapter. That MS Word में there are different type of language tool like spell check, dictionary, thesaurus. These all are the different type of language tool. Identify the various benefit of using the Word program software. We can identify the various benefit of the using the Word program software. Okay, now what is the next thing? Let us move ahead with the slide. Okay, screen component. See, this is what screen component, the opening screen of Microsoft Word 2010. अब हमारे सामने क्या आने वाला है, स्क्रीन कंपोनेंट. हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्क्रीन कंपोनेंट है वो कैसा दिखता है, दैट वी आर गोइंग टू सी. सी, कुछ इस तरह का होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्क्रीन कंपोनेंट. क्या क्या चीजें होती हैं, वी आर हैविंग फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू. तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्क्रीन कंपोनेंट ऑफ अवर MS वर्ड 2010 का. ये क्या होता है, ओके. दिस इज व्हाट, दिस इज वर्क एरिया. दिस इज व्हाट, ये क्या है बेटा, ये एक वर्क एरिया. ये जो ब्लैंक स्पेस हमें दिखती है
ये क्या होती है, ये होती है हमारी, ये है हमारी वर्क एरिया। ओके, दिस इज वर्क एरिया। और ऊपर ये सारी चीजें क्या है, these all things are the different ribbons, different component, different tools with the help of which we can use MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को हम जितना ब्यूटीफाई कर सकते हैं, दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ that we can do with the help of these tools. Like we can bold our text, we can italic them, we can underline them. Okay, let us move ahead with the slide. Now terminology, what are the different terminology? Now while different version have different appearance, just okay, first let me read. So what happened ki like different version of MS Word have different terminology and different appearance. They all have most of the same feature. होता क्या है MS Word में, जैसे हम लोग 2010 यूज कर रहे हैं, है ना, we are using MS 2010 यूज कर रहे हैं हम। तो उसमें क्या है, अपीयरेंस बदल गया। अपीयरेंस मतलब जैसा MS वर्ड 2008 या 2000 या विंडो विस्टा में दिखता था, अब वैसा नहीं दिखता है। अब वो वैसा नहीं दिखता है। What happened? Now it doesn't seems like that. What happened? They all have most of the same features. They all have most of the same feature. Okay, so I was telling you that different version of MS Word have different terminology. अलग-अलग terminology होती है। टर्मिनोलॉजी में जैसे डिफरेंट अपीयरेंस होता है। अपीयरेंस मीन्स व्हाट, अब जैसे आपके सामने जो ये स्क्रीन है, पहले क्या था, विंडो विस्टा या विंडो 8 में ये इस तरह की नहीं थी, उसमें इस तरह के रिबन्स नहीं हुआ करते थे या इतने ज्यादा फीचर्स नहीं हुआ करते थे। बट अब विंडोज 10 में वी आर गेटिंग ऑल दीज फीचर्स नाउ। अच्छा देखो, अब ये जो आपके ऊपर यहाँ पे जो व्हाट इज हियर, यहाँ पे जो आपका एक रेड आउटलाइन है, द एरिया, see the area outline in red is called the title bar. Here they are explaining each and every terms. यहाँ पे क्या वो समझा रहे हैं, एक एक टर्म्स को वो समझा रहे हैं। सो द एरिया आउटलाइन इन रेड इज कॉल्ड द टाइटल बार। उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट टाइटल बार। It displays the names of the open program, in this case Microsoft Word, and the name of the current file. यहाँ पे क्या है, देखो डॉक्यूमेंट 1 क्या है, डॉक्यूमेंट 1 इज द नेम ऑफ द करेंट फाइल। ये जो करेंट फाइल यहाँ पे सामने खुली है, दिस इज डॉक्यूमेंट 1। एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज व्हाट, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज नेम ऑफ द प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज नेम ऑफ द प्रोग्राम। वो क्या है, नेम ऑफ द प्रोग्राम है। ओके, लेट अस मूव अहेड। सो दिस इज व्हाट टाइटल बार। सबसे टॉप में सबसे ऊपर क्या होता है, टाइटल बार। ओके, नाउ मूविंग अहेड। Now here what they are saying, that this file has not yet been saved, so it is named is so its name is document. अभी तक इस फाइल को हमने सेव नहीं किया। अभी तक देखो इसका नाम क्या शो हो रहा है, अभी तक इसका नाम document 1 ही शो हो रहा है। Why? रीजन, बिकॉज हमने अभी तक इसको क्या नहीं किया है, अभी तक हमने इसको सेव नहीं किया है। जब हम इस फाइल को सेव कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, we will get its name. File created in Microsoft Word are often referred to as the documents and have the file extension. File extension क्या होता है, .doc या .dox, .doc या .dox क्या होता है, इनका फाइल का एक्सटेंशन।
So once we will save our file. So once we when we will save our file, so what will happen? We will get, हमें किस नाम से, .doc या .docx के नाम से हमें सेव करना होगा. ओके, so this I will explain you later when we will create any file. तब मैं आपको ये चीज समझाऊंगी. Now let us move ahead with this chapter. Let us see what is given in the next slide. Okay, so here they have given the area. See what is written here. Okay, now see, the area outlined in red contains the minimize, maximize, restore and close button. यहाँ पे जो एरिया है, देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो और अपने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे भी देख सकते हो. यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन है ना. मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन इज गिवन देयर ना. ओके, सो यहाँ पे इससे क्या होता है, these buttons are minimize, maximize, restore and close button for the program window. These three buttons are on the almost every window that opens in the window based platform. तो जो भी विंडोज बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है उस पे ये यहाँ पे ऊपर टॉप पे राइट मोस्ट साइड पे वी विल गेट दिस थ्री बटन. दे आर ऑन मैक विंडोज एज वेल बट दे आर सर्कल इंस्टीड ऑफ स्क्वायर. अब यहाँ पे देखो ये सारे किसमें, स्क्वायर्स में है ना, और मैक में क्या होगा, वो सर्कल में होते हैं. ओके, तो हमने ये देखा कि हर विंडोज स्क्रीन पे ऊपर टॉप राइट साइड में क्या होता है, टॉप राइट साइड में वी विल गेट maximize, minimize and restore button. Okay, when you click the minimize button, this I have already explained you कि जब हम minimize button को click करते हैं, when we click minimize button, program becomes a button on the Windows taskbar. क्या होता है, प्रोग्राम क्या हो जाता है, नीचे टास्क बार पे एक बटन बन जाता है. जब हमें सपोज करो मैं वर्ड पे वर्क कर रही हूँ बट मीनवाइल मुझे कैलकुलेटर यूज करना है, तो व्हेन आई विल ओपन द कैलकुलेटर मैं क्या करूंगी, वर्ड को मिनिमाइज कर दूंगी. या मुझे कोई मेल भेजना है तो मैं क्या करूंगी, what I will do, I will minimize. So I will minimize my word program and I will open the कैलकुलेटर. तो मिनिमाइज हम कब करते हैं, जब मिनिमाइज हम करते हैं तो व्हाट हैपन कि विंडोज टास्क बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. विंडोज टास्क बार क्या हो जाता है, विंडोज टास्क बार पे ये पूरा प्रोग्राम एक बटन बन के रह जाता है. ओके, नाउ बिफोर मूविंग अहेड विद दिस पीपीटी, I am going to explain you some of the thing with the help of book and later what will happen, अभी हम बुक के साथ थोड़ा पढ़ लेते हैं, then we will come back again to this PPT. पहले हम बुक के साथ, because book first we will finish our book and then we will move ahead with the lesson. So see the word window. अब यहाँ पे क्या है, word window screen दिया हुआ है. Yesterday also I have explained you this with the help of a picture, but today I am going to explain you this with the help of your textbook. Okay, so the word window, you will get a window on your desktop after starting the MS Word. ठीक है, you will get a window on your desktop after starting the MS Word. So what are those component, कौन कौन से वो component है, अगर अच्छा चलो मैम भी आपको दिखाएं कि वो कैसा दिखता है. फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर, आप अपने स्क्रीन पे देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट योर स्क्रीन. क्विक एक्सेस टूल बार इज हियर, टाइटल बार इज हियर, है ना, टाइटल बार इज हियर, रिबन टैब, विंडो कंट्रोल बटन. विंडो कंट्रोल बटन के बारे में अभी हमने पढ़ा ना, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्रॉस बटन. देन दीज आर व्हाट, दीज आर रिबन्स. ये सारे क्या है, ये सब रिबन्स हैं. फाइल टैब, नेविगेशन पेन, इंसर्शन पॉइंट, स्क्रॉल बार,
and then work area. Work area, this is what? This is work area. Okay, great. नाउ चलो मैम आपको एक विंडो स्क्रीन दिखाए. सी, ये देखो जैसा अभी हम पढ़ रहे थे, ये विंडो स्क्रीन कुछ वैसी ही है ना, है ना. ये विंडो स्क्रीन कुछ बिल्कुल वैसी ही है ना, जैसा मैम अभी हमें बता रहे थे. दिस इज व्हाट? फाइल टैब. दिस इज एंड फाइल टैब के बाद वी आर हैविंग होम टैब, देन इंसर्ट, देन लेआउट. ये हमारा ऊपर क्या है? हियर वी आर हैविंग अवर टाइटल बार. यहाँ पे क्या है हमारा? वी आर हैविंग अवर टाइटल बार हियर. यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट का नाम है. देन यहाँ पे देखो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, और यहाँ पे ये क्या है? क्रॉस बटन. और दिस इज व्हाट? दिस होल एरिया इज रिबन. ये होल एरिया कौन सा है? दिस होल एरिया इज रिबन. ओके, सो ये क्या है? दिस इज अवर, जब हम विंडोज ओपन करते हैं तो दिस इज हाउ अवर विंडोज स्क्रीन अपीयर. इस तरह से हमारा विंडो स्क्रीन क्या होता है? अपीयर होता है. होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू, हेल्प. अभी हम इन सारे टैब्स के बारे में स्लोली पढ़ेंगे. चलो लेट अस मूव बैक टू अवर चैप्टर. ओके, सी ऐसा ही कुछ था ना हमारा भी विंडो स्क्रीन, कुछ इसी तरह से हमें दिखा था ना. सो लेट अस रीड दीज थिंग्स वन बाय वन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग हियर टाइटल बार. सबसे पहला बार जो हमें पढ़ना है, वी हैव टू रीड अबाउट टाइटल बार. सो व्हाट इन टाइटल बार? द टॉप मोस्ट बार of the windows that display the name of the currently active word document. जो अभी एक्टिव वर्ड डॉक्यूमेंट है, करेंटली एक्टिव वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसका टाइटल हमें कहाँ दिखता है? टाइटल बार पे दिखता है. उसका टाइटल हमें दिखता है टाइटल बार पे. ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग फाइल टैब. नेक्स्ट वी आर हैविंग फाइल टैब. What in file tab? When you click on the file tab, a backstage view appear which resembles a menu. जैसे हम पेंट का जब फाइल टैब ओपन करते हैं, रुको लेट मी शो यू हाउ टू ओपन पेंट का फाइल टैब, बिकॉज दीज ऑल विंडोज आर ऑलमोस्ट सेम. तो ये मैंने पेंट ओपन किया अपने स्क्रीन पे, और जब मैं पेंट में इसका फाइल ओपन कर रही हूँ तो सी, ये जो मेनू आ रहा है ना, ये सेम मेनू आता है जब हम क्या करते हैं, जब हम फाइल टैब ऑफ वर्ड ओपन करते हैं, तब भी हमें क्या होता है? तब भी सेम मेनू आता है. अब देखो यहाँ पे फाइल टैब में कौन सा मेनू आ रहा है हमारे पास? Here we are getting new, open, save, save as, print, send email, properties, about, paint, exit. ठीक है, तो सेम थिंग फाइल टैब में हमें क्या मिलता है? वी विल फाइंड अ लिस्ट ऑफ कमांड लाइक सेव, ओपन, प्रिंट, एक्सेट्रा. और देखो यहाँ पे भी हमें वही सारी चीजें दिख रही है ना. यहाँ पे भी देखो, अगर मैं यहाँ पे भी फाइल टैब को ओपन कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है? सेव, सेव एज, प्रिंट, यही सारी चीजें आ रही है ना. ओके, फाइन. सो हमने देखा फाइल टैब में क्या होता है. नाउ नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार, इट डिस्प्लेस क्विक एक्सेस बटन टू सेव, undo and redo command. It displays the quick access buttons to the save, undo and redo command. Save, undo and redo command हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. कहाँ देखने को मिलता है? We will get save, undo and redo command in quick access toolbar. Let me open that for you. Where is quick access toolbar? Here. Yeah, see, undo, redo. Here we will get the, this is what? This is
Okay, so I was explaining you about the quick access toolbar. So it displays the quick access button like the save, undo and redo. देखिए हमें यहाँ पे मिलता है क्विक एक्सेस टूल बार. देखो टॉप ऑफ द स्क्रीन हमें यहाँ पे शो होता है क्विक एक्सेस टूल बार. अभी मैं दिखाती हूँ आपको पेंट में भी क्विक एक्सेस टूल बार. ओके, पेंट में भी देखो, पेंट स्क्रीन पे भी देखो, यहाँ पे टॉप पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे टॉप पे आपको दिखेगा. सी, this is what quick access toolbar. This is save button, this is redo, this is undo. Okay, so ये सारे क्या हैं? These all are the quick access toolbar. Okay, so this is quick access toolbar. Now let us move ahead. Let us see which is the next tab that about which we have to study. Okay, after quick access toolbar we are having title bar. Acha, this to I have explained you. Then next topic is ribbon. Now in ribbon it displays group of related command in tab. Ribbons, it displays group of related command in tab. Each tab offers a shortcut button to common tab. देखो ribbon हम किसको बोलते हैं? इसको. ये जैसा ये नीचे ये खुल के आ रहा है ना, रुको मुझे विंडो स्क्रीन पे आपको दिखाने दो. सी, ये जो यहाँ पे ऐसे खुल के आ रहा है ना, दिस इज व्हाट, दीज ऑल आर द रिबन्स. इसी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट रिबन. ओके, वी कॉल रिबन टू इट. हम इसी को रिबन बोलते हैं. जब भी हम किसी भी टैब को क्लिक करेंगे, सपोज इंसर्ट को क्लिक किया, लेआउट को क्लिक किया या रेफरेंस को क्लिक किया, so what will happen when we will click any of these component, क्या होगा? उनका रिबन ओपन हो जाएगा. लेट मी शो. जैसे अभी होम पे हमने क्लिक किया तो होम में कट, कॉपी, पेस्ट, फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीजें आ रही. अब हम जब इंसर्ट पे करेंगे तब देखो क्या होता है. अब मैं जा रही हूँ, आई एम क्लिकिंग ऑन इंसर्ट. अब देखो इंसर्ट में इतनी सारी चीजें आ गई ना. इंसर्ट में आ गया ना कि दैट वी कैन ऐड टेबल. सपोज आई एम एडिंग टेबल, है ना. अब यहाँ पे टेबल यहाँ पे आ गया. ओके, नाउ लेआउट से लेआउट भी आई कैन फिट. लेआउट ऑल्सो, मार्जिन, ओरिएंटेशन, references, I can click on the references also. So these are what? These all are what? File, home, insert, layout, reference, review, view, help. These all are the different tabs. ये सब क्या है? ये सब different tabs हैं. ये सब क्या है? डिफरेंट टैब्स हैं. ओके, these all are the different tabs and when we will click on these tabs, हमारा क्या होगा? जो नीचे ऐसा ओपन होके आ रहा है, we call it ribbon. We call it ribbon. Ribbon tab. Next is ribbon tab. Each ribbon tab provide a set of tools related to an overall task you are likely to performing in a specific document. ठीक है, each ribbon tab provides a set of the tools related to an overall task you are likely to be performing in a specific document. Okay, next is insertion point. Insertion point is a flashing line. अच्छा, now see insertion point. This तो I have already explained you, but today also I am going to explain you. देखो, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मेरा जहाँ पे माउस कर्सर आपको दिख रहा होगा, दैट ये क्या हो रहा है? ब्लिंक हो रहा है. सो दिस इज व्हाट? दिस इज द insertion point. This is what? This is insertion point. Now insertion point is a flashing line. Insertion point is what? Insertion point is a flashing line on the screen that indicate where the text
you type will appear. That tell us that जहाँ पे हम कहाँ पे टेक्स्ट, that where the text you type will appear. टेक्स्ट कहाँ पे appear होगा? जब हम उसे टाइप करेंगे. ओके. नेक्स्ट इज व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट. Word provides access to 5 different views of your document. Word provides access to 5 different views of document. Okay, now let us move ahead. After view of document, we are having scroll bar, status bar and Windows control button. Next we are having scroll bar, status bar and Windows control button. Scroll bar. The scroll bar help you to move the content of the document up, down, right and left. The scroll bar help you to move the content of the document up, down, right and left. Okay. Next is status bar. Status bar is situated at the bottom of the document. Status bar is situated where? At the bottom of the document. पहले scroll bar हम देख लेते हैं. Scroll bar help you to move the content of the document up or right. चलो, let us open the scroll bar. So where is scroll bar? See, this is what? This is my scroll bar. अब देखो मैं ऐसे कर रही हूँ तो what is happening? ये ऊपर नीचे हो रहा है ना? So this is what? This is the scroll bar. After scroll bar, next is status bar. After scroll bar, next is status bar. अब देखो status bar में what we get? In status bar is situated at the bottom of a Word document. Okay, status bar is situated at the bottom of the Word document. It displays information such as word count, page number, line number, zoom, slider, language and the other detail. Okay. So let us see the status bar. चलो अब status bar देखते हैं. See, this is what status bar. अब यहाँ पे देखो कहाँ पे मेरा status bar है, इधर. See here, यहाँ पे मुझे पेज नंबर वर्ड दिख रहा है ना. Why word is 0 here? और देखो यहाँ पे लैंग्वेज में मुझे दिख रही है ना इंग्लिश यूएस करके. Now why word is 0 here? Word 0 क्यों है यहाँ पे? Because I haven't typed anything. When I will start typing, तो जब मैं यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा? सी, जब मैं यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करूंगी तो यहाँ पे देखना ये वर्ड बढ़ेगा. चलो लेट मी शो यू. मैं जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू टाइप समथिंग एंड सी. ओके, सो होम एंड आई एम गोइंग टू टाइप सी. ओके, सी, मैंने यहाँ पे 2 वर्ड लिखा कंप्यूटर एंड. मैंने 2 वर्ड लिखा कंप्यूटर एंड. अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो गया? 2 ऑफ 2 वर्ड्स आ गया ना, बिकॉज आई हैव रिटन द 2 वर्ड्स. दैट्स व्हाई यहाँ पे वो क्या शो कर रहे हैं? 2 वर्ड्स. दैट्स व्हाई दे आर शोइंग 2 वर्ड्स. Okay, so kids, this is it for today. Now we will meet in our next class, and then in our next class I will explain you the rest of the component.
Hello kids, welcome back to your math, computer class. And so kids, in our last class we have gone through some of the concept like what are the word processors and what are the things we can do in word processor. Now today we will read about the different component of word processor. Today we will read about what are the different component of the word processor. So that we will do with the help of our PowerPoint presentation, and then we will read the component of a word window with the help of this open this our software, that is Windows. Okay, so let us start.